Good afternoon, friends. Welcome to new episode of our weekly mentoring sessions. जैसे आपको पता है कि हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया था कि जो नौजवान हमारे हैं उनको हम गाइड कर सकें और उनके लिए डिफरेंट एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें और हम उन दोस्तों के साथ सेशन करें जो एक्चुअली उस फील्ड में है और अपने एक्सपीरियंस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें. वी हैव कंडक्टेड सेवरल सेशंस. तो हमारा फर्स्ट सेशन था, अगर आप उसको याद करते हैं, दैट वाज ऑन various career fields. If one should seriously pursue a career in government job, means public sector or private sector, or he has to pursue his career in entrepreneurship. पर हमने एक सेशन आपके साथ और भी किया जिसमें आपने देखा होगा, हमने वो ये था कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं. उसमें भी एक लेंथी सेशन था. The very last session we conducted and also played on social media was actually based on experiences, how to join civil services and what are the practical steps one has to take to join or get into civil service or qualify this exam. बिल्कुल उसी तरह का आज ये प्रोग्राम, ये सेशन होगा जिसमें हम एक और बहुत बड़ा एवेन्यू, वो है कैरियर इन आर्म सर्विसेज. देखें, इसकी बहुत सारे कंट्री के जो जो एरियाज है वहाँ पे तो पूरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारे जैसे जो एरियाज हैं, खासतौर पर सिंध रूरल और बलूचिस्तान, वहाँ पे बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है. तो आज का हमारा सेशन होगा डिवोटेड हाउ टू बिल्ड और एंटर इन आर्म फोर्सेस, और उसमें क्या चैलेंजेस हैं, और उनमें उस चैलेंजेस पार करने के बाद जब बंदा अपना करियर स्टार्ट करता है तो ड्यूरिंग करियर कौन सी हर्डल्स हैं और कैसे वो आगे जो है ना उसमें प्रोग्रेशन हो सकती है. टुडे आज का मौजू हमारा ये होगा, और इसके लिए जिस दोस्त को दावत दी है उसने पूरी ज़िंदगी यही काम किया है. ही ज्वाइंड पाकिस्तान एयरफोर्स एज अ जेडी पायलट. He retired maybe through his own option as a wing commander. सर का नाम है मिस्टर मोहम्मद इकबाल कीरो, विंग कमांडर. लेकिन इनका एक और चीज़ है कि ये स्पेंड हिज एंटायर कैरियर इन आर्मी सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड कैरियर काउंसलिंग. तो आज हम उनसे पूछेंगे. सबसे पहले तो कीरो साहब, आपको हम वार्म वेलकम कहते हैं. Thank you very much, Honorable Ali Saab. I'm grateful to be present in this group. I must appreciate your efforts that you are doing for the community. And let me introduce myself. I was born in Sakran, village Haji Kiro, brought up there, and then joined MBBS at Liaquat Medical University. From there, I hopped to Pakistan Air Force in 100 GDP course. After some time, I was again switched to Air Defense branch, which is operational branch. Toward middle of the career, then I again switched towards the human resource induction and public dealing, and then remained there. I retired in 2023. Meanwhile, I studied political science, economics, and different subjects that always interested me. So right now, when I'm doing business, my private businesses, this career counseling and guiding youth is my passion. I do it for my passion. So today I'm here to tell the people that it's very easy and it's very lucrative, and there are a lot of opportunities, but many people don't know it because there's little exposure, particularly in the south, Sindh, Balochistan, and also in the northern areas like Kashmir, Gilgit, Baltistan. There we have limited exposure to these opportunities. Schools and universities guide people towards the regular professions in the research and degrees, but in the military services there's little exposure. So I've been working in Balochistan and Sindh particularly for going out and telling people how many opportunities are there. So I would just start by saying this, that from this moment onwards, we all, maybe of any age group, let's start to see the military organizations as a complete ecosystem rather than seeing it as a single job or particular limited interaction. So it is an international arena for all of us, maybe of any age group, starting from class 5, 6, rather I would say even from the KG it starts. How that we can unfold in the subsequent questions, but it's a complete ecosystem we all must understand, and
we should take our best share out of it. Very good. So Kiru sir, today we are here to discuss the opportunities. Uh, Primary focus will be for the youth. They are in class 11, 10, 11, or 12, or maybe 13th class, that is in first year in university or second year. But it is not limited to them only. So there are mainstream military organizations like Pakistan Army, Air Force, and Navy. But there are many other institutions that they have in parallel, like the cadet colleges or other organizations in which almost all of us can join, be a part of it. And it's a wonderful opportunity. Everyone must try and get into it. Now we can move forward with your questions, sir. thank you. Thank you, Kiru sir. This was a really elaborate and very inspiring introduction of yourself. One good thing about you, which I understood, is that you devoted your entire career in human resource development, which is very essential. If you want to build a nation, you have to build a good quality human resources. And also, this field which you have mentioned, is armed forces, is a very unexplored field. And many of us, including myself, I don't know much about army. Although we did training with army for 1 month after qualifying civil services, but it was a little exposure, Pakistan Army or Pakistan Armed Forces. So my first question, अभी हम इसको उर्दू में बात करते हैं तो people should understand it. सबसे पहले मुझे आप ये बताएं, आप समझाएं कि आपको किसने इंस्पायर किया। हालांकि जिस एज ब्रैकेट में आप भी हैं और हम भी हैं, उस वक्त तो बिल्कुल काउंसलिंग नहीं होती थी, हमें कोई बताता नहीं था कि ये भी एक फील्ड है जिसमें जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। आपने किससे इंस्पायरेशन ली? हालांकि आप डॉक्टर भी बन चुके थे, या मतलब डॉक्टर बनने वाले थे, किससे आप इस ये अपटेक मतलब ये ऑप्शन लिया, और उसके बाद आपका ये एक्सपीरियंस या जर्नी कैसी रही? Okay, so from the very beginning, I was very outstanding in my every class. I used to top every class. I never had this fear that I will be left out. I was very confident that I'll be selected. But where that time initially, I only had the wisdom and the exposure that I can be a doctor, a very good doctor, or I can be an engineer. So as I moved ahead, I studied medical and joined Liaquat Medical University, which was then a college, in 94th batch. But as I moved forward, I saw that dunya aage aur bhi hai. So I started to look around what else can be done. So one of my class fellow batchmate in from Sakrand, Sarfaraz Khanzada, he told me that today I'm going to Pakistan Air Force Selection Center for becoming a GD pilot. Let's go. I said, but I have done no preparation. How should I do it? He said, let's go. Maybe we can go and find out. So we went there right away. So I if I can recall correctly, he paid my fees also. That was 130 rupees or something. So I passed and he could not qualify. From there I switched. And it was just incidental. I qualified the preliminary and then I was called for ISSB to Kohat. So I had never seen Kohat before. First, I thought I should go or not, but then I said, okay, let's go. Then, सॉरी आपने कहा था उर्दू में बात करनी है, तो मेरी जो आईएसएसबी जाने के लिए जो तैयारी थी, मुझे जिस बंदे ने कन्विंस किया था कि आप जाएं, उनका नाम है सुंदर दास, चाचा सुंदर हम उसको कहते थे। मैं उनकी दुकान पे आके बैठता था, जब गाड़ी के लिए इंतजार करता था तो मैं उनकी दुकान पे बैठता था। उनको मैंने बताया, चाचा इस तरह से मुझे कॉल आ गई आईएसएसबी की, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना? बाबा वञो वञो ज़रूर वञो। ऐं मां चयोमांसि त बट आई डोंट हैव मनी, माय फादर वाज इन सऊदीया। मां चयोमांसि मूं वटि हींअर पैसा कोन्हनि के, आई डोंट नो बाबा पैसा मोकिलींदो कॾहिं, त हींअर ही सेड नो। मूंखे हुन 1000 रुपया ॾिना हुन ज़माने में, चई टेक दिस, बाबा मोकिले पोइ मूंखे ॾेई छॾिजांइ। सो आई वाज हाफ हार्टेड बट ही पुश्ड मी टू गो। ॿुधाइण जो मतिलबु इहो आहे त आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, मुंहिंजी का तयारी कोन हुई, बट आई वाज प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल द ऑडियंस नाउ। Now you want How to I was say that your selection in Pakistan Air Force was simply accidental. Somebody told you, you applied, you got selected. So once you landed in Pakistan Air Force, then आपकी सोच क्या बनी? मतलब आपने देखा कि ये ऐसी जगह है या ऐसा करियर है जिसको आप परसू करेंगे तो न फकत आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज खुलेंगे, लेकिन आपकी पूरी फैमिली के लिए खुलेंगे। तो how were your feelings when you actually joined and become GD pilot after all this selection process? उसके बाद आपके क्या थे जज्बात और तासरात, और आपने हाउ डिड यू टेक इट? अच्छा, मैं ये बताऊंगा कि जब मैं आईएसएसबी पहुंचा
तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा ना 3 दिन में, बार बार वो मुझसे पूछते रहे। जीटीओ जीटीओ मुझे बाद में भी मिले थे, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। उन्होंने कहा आपका एसएसबी बहुत अच्छा हुआ था। वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि अगर आपको हमने सिलेक्ट नहीं किया तो क्या करोगे। 3 दिन तक मैं माना नहीं। मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं सिलेक्ट करेंगे आप, आपको अच्छे फिजिकली फिट लोग चाहिए, मैं फिजिकली फिट हूँ। आपको पायलट सेलेक्ट करना है, हैंडसम स्मार्ट चाहिए, वो भी मैं हूँ। आपको सिंध से लोग चाहिए, वो भी मैं हूँ। आप किसी सब्जेक्ट में मेरा टेस्ट में हूँ, आप क्यों नहीं लेंगे। तो बार बार वो मुझसे पूछता रहा। लेटर ऑन जब मुझे ड्यूरिंग सर्विस वो मुझे वो उन्होंने बोला कि आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। हमारी बड़ी डिस्कशन हुई थी आईएसएसबी में कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, जबकि मैं बिल्कुल गांव में पढ़ा हूँ। आई एम टिपिकली इंडिजिनस सिंधी, एंड माय एक्सपोजर वाज कि मैं जहां मुझे काम होता था मैं पहली दफा तब जाता था। तो इस तरह से मैं जब गया तो स्ट्रेंथ क्या थी, स्ट्रेंथ ये थी कि मेरे जो एकेडमिक्स थे, जिस लेवल पे भी मैं होता था मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ता था हर क्लास में। तो मेरे एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग थे, स्टार्टिंग फ्रॉम इस्लामियात एंड इंग्लिश एंड उर्दू। एवरीबडी यूज्ड टू से कि यार तू सिंधी यहीं पर तांजे जबान में लगे कौन, तो तू सिंधी ही लगे तो तू के भी ये जबान था ही अच्छा। आई यूज्ड टू से ना आई एम टिपिकली सिंधी, माय बोथ पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एंड एवरीबडी वाज सिंधी। बट आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम द उर्दू स्पीकर्स जो कि मेरे शहर में होते थे सकरन में, मेरे उस्ताद। मेरी उर्दू की लिखाई भी बहुत अच्छी है बिकॉज दे टॉट मी। सो आईएसएसबी में मेरा ऐसे सिलेक्शन हुआ, मेरी कोई तैयारी नहीं थी। बस तैयारी ये थी कि मैंने अपना पढ़ाई की हुई थी। उसके बाद जब मैं, आपने पूछा कि पहुंचा जब रसालपुर एकेडमी में एयरफोर्स में, तो वहां कैसा था। इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, अ शॉक ऑल्सो। शॉक इसलिए कि वहां जाते ही पनिशमेंट शुरू हो जाती है, इंसल्ट शुरू हो जाती है। मैं बहुत मोजिस किस्म का आदमी हूँ, तो मैंने कहा कि यार ये तो बहुत शाउटिंग कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गया। मैंने कहा ये तो इंसल्ट हो रही है, तो दे डोंट हैव द मैनर्स, ये तो शाउटिंग करे मेरे ऊपर, मैं तो बहुत खानदानी आदमी हूँ। तो मुझे फिर एक आध दिन मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। पहले ही दिन में थोड़ा सा पीछे हो गया। तो फिर मेरे सीनियर से उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये नॉर्मल है, दे डोंट मीन इट, जो कह रहे हैं इट्स जस्ट जस्ट टू मेक यू स्ट्रांग। उसके बाद फिर मैं आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द शाइनिंग स्टार्स देयर। बड़ा अच्छा लगा। एयरफोर्स या वेरी किसी गुड। भी फोर्स में हम आगे जाना, आगे इट्स ए आगे लग्जरी। चलते हैं, आगे चलते हैं कि देखें, या जब हम पाक पाक आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे सर फहरिस्त होता है पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, उसका अपना एक करियर पाथ बनता है। फिर एयरफोर्स है, डेफिनेटली एयरफोर्स का अपना एक अट्रैक्शन है, और एक पाक नेवी है। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहूँगा कि व्हाई डिड यू ऑप्ट पाकिस्तान एयरफोर्स, नॉट पाकिस्तान आर्मी, जिसकी प्रेजेंस या उसकी स्ट्रेंथ बहरहाल इस पाकिस्तान एयरफोर्स से ज्यादा है। इस सवाल को आप टेक्निकली किस तरह कहेंगे? अच्छा, मैंने अप्लाई किया था, मुझे किसी ने बताया था कि आर्मी मेडिकल कोर है एएमसी कॉलेज, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। उसकी मुझे कॉल भी आई थी। बट व्हाट हैपेंड कि उन दिनों में वो पोस्ट ऑफिस वाला सिस्टम था। हमारे किसी रिश्तेदार, वो जो होता है ना कि गोठ हाजी कीरे उताल को सकरन, सो वो खत घुमा दो। व्हेन इट केम टू मी, बाय दैट टाइम आई हैड जॉइंड एयरफोर्स। दैट वाज एक्सीलेंट। चलो अभी अब आप बताएं कि आपकी जो करियर रहा, मतलब फ्रॉम ट्रेनिंग ऑनवर्ड, आपने कौन कौन सी जगहों पे आपने पोस्टिंग की, और हर पोस्टिंग की क्या खास रिक्वायरमेंट या चैलेंजेस थी, और उससे आपने किस तरह का, मतलब क्या लर्निंग ली, और आप किस तरह हमें बताएंगे कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स में किस तरह करियर प्रोग्रेशन होती है? अच्छा, ये जो फोर्सेस है ना सारी दुनिया में, एक तो ये कि दे आर ऑल इंटरनेशनल, इनका तकरीबन स्टैंडर्ड सिमिलर का इनका होता है। और हमारा जो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं, अभी आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, वो ऐसे खाम खामे नहीं करती। उनका कल्चर हमने उनसे लेके बहुत अच्छा कर दिया है। तो हमारे फोर्सेस का कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जाता है। आपके ऑब्जर्वेशन में होगा कि इवन जो रॉयल फैमिली ऑफ यूके है या दूसरी जगहों के हैं, वहाँ के लोग अपने शहजादों को आर्मी या नेवी में भेजते हैं या एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर्स फॉर देयर प्रोफाइलिंग एंड मैनरिज्म। तो ये तो पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है ना। कैसे आपने बात करनी है, ड्रेसिंग कैसे करनी है, कमरा कैसे रखना है, बेड कैसे सेट करना है, लोगों से मिलना कैसे है, खड़े कैसे होना है, कहीं पे आपने अगर किसी से इंटरेक्शन करना है। फिर देन आगे जब हम सीनियर होते हैं, फिर आपके बेसिक स्टाफ कोर्सेज शुरू हो जाते हैं, मिड करियर कोर्सेज होते हैं, फिर सीनियर स्टाफ कमांड एंड स्टाफ कोर्सेज होते हैं। उसमें आपको दे टीच यू एवरीथिंग। उसके बाद जब कमांड डिपार्टमेंट पे आप जाते हैं, तो उसके बाद फिर आप सीखते हैं कि मैंने हैंडल कैसे करना है। आई हैव हैंडल लॉट ऑफ सिविल
senior officials, the bureaucrats, the politicians, and business community, वो सिखाया सीखता है आदमी बहुत कुछ. So it's a complete career path. आई वुड से कि जिस फैमिली को या जिस पर्सनालिटी को अपनी प्रोफाइलिंग करनी है ना पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उसको मिलिट्री में जरूर आना चाहिए, क्योंकि उससे आदमी की बहुत अच्छी प्रोफाइलिंग होती है, एक बहुत अच्छा ग्रुप बनता है, और आपके बारे में लोगों की एक राय चेंज हो जाती है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आपकी फर्दर किस तरह, मतलब आपने जब एज ए मतलब जीडी पायलट शुरू किया, फिर आपकी कौन कौन से रैंक्स में प्रमोशन हुए, और आप विंग कमांडर तक पहुंचने के बाद आज आपने खुद ऑप्ट किया कि आपने रिटायर्ड होना या आपने कंपल्सरी रिटायर होना पड़ा? ये थोड़ी सी आपने कैरियर प्रोग्रेशन और उसकी जर्नी में समझाएंगे? अच्छा, करियर प्रोग्रेशन ऐसी होती है कि जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तो वहां पे हमारा रैंक होता है एविएशन कैडेट. तो 2 साल की ट्रेनिंग है आर्मी में, एयरफोर्स में 3 साल, 3.5 साल, डिफरेंट, थोड़ी सी वेरी करती रहती है. नेवी में भी इस तरह से है. तो जब एयरफोर्स से हम पास आउट होते हैं तो वो होता है फ्लाइंग ऑफिसर, और जो नेवी से होता है वो सब लेफ्टिनेंट होता है, और जो आर्मी से होता है वो सेकंड लेफ्टिनेंट होता है. उसके बाद जो अगला रैंक होता है हमारा वो होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट. तो आर्मी में वो कैप्टन होता है, और नेवी में उसको कहते हैं लेफ्टिनेंट. और उसके बाद अगला स्क्वाड लीडर जैसे मेजर होता है, और नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर होता है. एंड देन सब्सिक्वेंटली विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल, और कमांडर नेवी में. अच्छा, इसमें होता ये है कि हमारे फोर्सेस की अच्छी बात ये है कि आपके पास जल्दी आप आते हैं तो जल्दी रिटायरमेंट की भी ऑप्शन होती है. और सिंस बहुत एग्जॉस्टिव सर्विस होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है फिजिकली, तो जल्दी रिटायरमेंट की ऑप्शन भी होती है. उसमें होता ये है कि कम टर्म यूज होती है मेच्योर सर्विस, रैंक सर्विस. तो अगर आप एक मेच्योर सर्विस, रैंक सर्विस पे आते हैं, उसके बाद आपका आगे प्रमोशन नहीं होता या आप प्रमोशन नहीं लेते, देन यू कैन रिटायर. तो मैं क्योंकि थोड़ा सा शौकीन आदमी हूँ, मुझे शुरू से शौक था कि मैं राइट लेफ्ट आगे पीछे एक्सप्लोर करता रहूँ. तो मेरा को बहुत ज़्यादा लंबी सर्विस करने का इरादा नहीं था, और फिर प्रमोशन भी नहीं हुआ. प्रमोशन होता तो शायद 1-2 साल और गुजारते. लेकिन ये कि आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर अ लॉन्गर करियर, कि मुझे एयर मार्शल बनना था या एयर चीफ बनना था. वो दैट वाज नॉट माय चॉइस. वो बहुत अर्ली मैंने स्विच कर लिया था फॉर द रीजन. ठीक हो गया। अभी अभी हम मैं हाउस को थोड़ी देर के लिए ओपन करता हूँ। अब किसी दोस्त को सिर्फ इस जो एस्पेक्ट हमने इकबाल साहब की हमने डिस्कस की, फ्रॉम ट्रेनिंग, ऑप्टिंग पाकिस्तान एयरफोर्स और टिल विंग कमांडर व्हेन ही ऑप्टेड फॉर रिटायरमेंट, इसके लिए कोई क्वेश्चंस हो तो आप उनसे पूछें। एक लंबा सेशन चलने वाला है क्योंकि हमने सिर्फ एयरफोर्स को डिस्कस किया, हमने बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करनी है। तो हाउस इज ओपन इफ एनीबॉडी हैज क्वेश्चन। अगर आपने हैंड्स अप करना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे चैट में लिख के भेजें, मैं आपका क्वेश्चन रिपीट कर लूंगा। सवाल करें या मैं आपका सवाल पढ़ के सुनाता हूँ? ठीक सर, आपने कर दिया है सवाल, यही सवाल है। चलो आप रिपीट करेंगे, मुझे रिकॉर्ड करना है तो आप रिपीट करें इसको, या मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सर कीरो साहब, बेहतरीन आप तजिया दे रहे हैं। अब नए बच्चों को आर्म सर्विसेज में किस तरह जाएंगे, इसके लिए कुछ उनकी आप गाइडेंस करें। कीरो साहब यही सवाल था, अभी आपको इसको आप ठीक। जवाब देना है, फिर हम आगे अच्छा, देखें। इसमें ये है कि जो बच्चे हैं ना, एक तो है कैडेट्स, आप स्टार्ट होते हैं क्लास 6-7 से. मैं आपको बताऊं कि सिलेक्शन होती कैसे है. आपका सर बहुत अच्छा सेशन था वो जो सिविल सर्विसेज वाला. मैंने सिविल सर्विसेज भी किया है वैसे. तो सिविल सर्विसेज बहुत एग्जॉस्टिव है, बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा वो करनी पड़ती है. ये बहुत आसान है इसमें आना, बहुत आसान है, बहुत जल्दी आपको इसका रिवार्ड मिल जाता है. आसान कैसे है कि पहला स्टेज है कि आप बच्चा 6-7 क्लास का जा सकता है कैडेट कॉलेजेस में, जिसमें आर्मी में कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल है, कैडेट कॉलेज नेवी का पेटारो है, सांगड़ है, और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे. एयरफोर्स के बहुत अच्छे कैडेट कॉलेजेस हैं. पीएफ कॉलेज सरगोदा है, पीएफ कॉलेज लोटोपा है. एक हैदराबाद के आसपास एसएसटी राशिदाबाद है. इस तरह के जो कैडेट कॉलेजेस हैं, यहाँ बच्चे 6-7 क्लास में जाते हैं, और इसका सिलेक्शन भी बहुत आसान है. तो इसमें जब बच्चे जाना चाहते हैं तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, जिसमें इंग्लिश, इन 2 लैंग्वेजेस हैं, और 2 साइंस सब्जेक्ट्स हैं. स्टेम सब्जेक्ट्स 2 हैं. लैंग्वेजेस में इंग्लिश और उर्दू, और स्टेम में मैथ्स और साइंस. तो अगर बच्चे ने 5वीं और 6ठी की ये 4 किताबें अच्छी तरह से पढ़ ली हैं तो उसका सिलेक्शन तकरीबन हो जाता है. दूसरा एस्पेक्ट होता है फिजिकल. अच्छा, यही चीज आपको
फर्स्ट ईयर के बाद, यानी कि टेक्निकली तो इंटर के बाद, लेकिन जब फर्स्ट ईयर बच्चा पास कर लेता है तो उसको हम ले लेते हैं और सेकेंड ईयर वो बाद में करके अपने रिजल्ट जमा करा लेता है। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या जो 13th ईयर होता है, फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, उसके दौरान ये बच्चे जा सकते हैं। उसमें भी यही है, अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश ये सीरियसली पढ़ा है और पढ़ के उसका बी ग्रेड आया है, तो फॉर श्योर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने सिर्फ बी ग्रेड, ब्रावो, बी ग्रेड तक का भी फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा हुआ है, जिसमें ओरिजिनली उसका विदाउट एनी अनफेयर मींस बी ग्रेड है, तो उसका सिलेक्शन तकरीबन हो सकता है। जो दूसरा एस्पेक्ट है मिलिट्री सर्विसेज का, इसमें यह है कि वन हैज टू बी सुपर फिट। सुपर फिट से मेरा मतलब ये नहीं है कि एथलीट, सुपर फिट से मतलब है कि आपने अपने किसी भी ऑर्गन को डिसेबल नहीं होने देना। आजकल के दौर में सबसे जो मसले आ रहे हैं वो दो हैं, एक है आईसाइट, दूसरा है ओबेसिटी। ठीक है, तो आईसाइट और ओबेसिटी दोनों का ताल्लुक आपके मीडिया जो स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से, दूसरा मील टाइमिंग ऑड करने से। यानी रात को अगर आप लेट खाते हैं, 10-11 बजे के बाद खाते हैं, 9 बजे खाते हैं, 10 बजे खाते हैं, 12 बजे, रात को 1 बजे मिडनाइट मील करते हैं, उससे ओबेसिटी और ये वो चीजें हो जाती है। बस अपना, बहुत आसान है, अपना स्टेमिना मेंटेन करें, हेल्दी फूड खाएं, सुबह उठें, नमाज पढ़ें, जॉगिंग के लिए चले जाएं, रनिंग करें और वापस आ जाएं, फिर नहा धो के थोड़ी सी पढ़ाई कर लें। इट्स वेरी इजी, डूएबल है, बट ये कैजुअल नहीं है। जिस भी बच्चे को करना है तो उसको ये समझना है कि मैंने इसको सीरियसली करना है, मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन विदाउट प्रिपरेशन हो गया, दिस डज नॉट मीन कि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, नो, मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड था। मैं अपनी फिटनेस इसी तरह से रखता था, मैं अपने एकेडमिक्स को, तो मैं तो टॉपर था, लेकिन जो हमारे साथ ऐसे भी हमारे कोलीग्स थे जो नॉर्मल बी ग्रेड, कुछ सब्जेक्ट्स में सी ग्रेड भी थे, एंड दे आर डूइंग वंडरफुल, दे आर फ्लाइंग F-16, कोई मसला नहीं है। वेरी गुड। अभी मैं आपसे मतलब अलग से क्वेश्चन करूंगा, ये है कि अ, जो तस्वर हमारे पास है कि जी आर्म फोर्सेस का जो जॉब होता है वो टफ होता है, मतलब यू स्टार्ट वेरी अर्ली, क्योंकि हमें भी एक चांस मिला था, हमने भी 1 महीना एज ए कैप्टन की ड्यूटी की थी। यू स्टार्ट योर डे वेरी अर्ली, मतलब आपकी परेड होती है, ड्रिल होती है, फिर आपका एक पूरा स्ट्रिक्ट शेड्यूल होता है। तो ये जो आर्म फोर्सेस की जो लाइफ है वो कितनी रिगरस है आपके ख्याल में, या जब आप यूज्ड हो जाते हैं यू स्टार्ट एंजॉयिंग फ्रॉम इट? हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल था जब हमने अपनी ट्रेनिंग की थी आर्मी के साथ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने तो लंबा स्पेल आर्म फोर्सेस में रहा है, कि वाकई इट्स रिगरस और एट वन पॉइंट यू बिकम गेट यूज्ड टू इट और फिर आपको इसे एंजॉय करने लगते हैं? आपका अपना कैसा रहा इसमें जो है ना एक्सपीरियंस? अच्छा, आर्म फोर्सेस की रूटीन और ट्रेनिंग और सर्विस बहुत आसान, मुश्किल नहीं है। मुश्किल लगती है, मुश्किल लगती क्यों है? मुश्किल उसको लगती है जिसके ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन में या उसकी सोसाइटी में डिसिप्लिन नहीं है। जिस भी जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मेरे बच्चे आर्मी में चले जाएं, उनको कोई मुश्किल नहीं आएगी, बिकॉज मेरे घर में डिसिप्लिन है। तो जिसके भी घर में डिसिप्लिन है, जिसके भी स्कूल में डिसिप्लिन है, जो भी बच्चे स्कूल टाइम पे जाते हैं, जो भी बच्चे स्कूल टाइम पे जाते हैं, अपना होमवर्क टाइम पे करते हैं, अपनी चीजें टाइम पे करते हैं, तो वहां कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, आर्मी या हमारे फोर्सेस में एक मुश्किल और है जो रियल है, उसके साथ आपको लिव आउट करना पड़ता है, देन वन स्टार्ट्स एंजॉयिंग आल्सो। वो क्या है? वो है ऑर्डर। जो आपको टाइम दिया गया है, मैं कल भी एक दोस्त को कह रहा था कि यार कितना मुश्किल होता था कि हमें कोई कह देता था कि 12 बजे वहां पहुंचना है, और हम सारे भाग भाग के ना 12 बजे से 5 मिनट पहले पहुंचते थे। अब तो हम आजाद हैं, अब तो इतना मसला नहीं है। तो ऐसे ही मजाक में मैं बात उसको कर रहा था, ये होता है डिसिप्लिन। आर्मी में या एयरफोर्स में अब दे आर नॉट बॉदर्ड कि आप कहाँ थे, रात को आप कब सोए, क्या हुआ। वो आपको बोलेंगे भाई सुबह आपने 6 बजे पहुंचना है किसी भी वजह से, और उस वक्त फिर पहुंचना है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचे। दिस इज द सिंगल ट्रेट जो कि बहुत मुश्किल लगता है कभी कभार। मुश्किल कब लगता है? मुश्किल तब लगता है जब ऑर्डर्स जो है ना किसी वाया मीडिया के थ्रू आते हैं, और हम किसी और फॉर्मेशन के साथ या किसी जगह पे जाके हम काम करते हैं, और हम कहते हैं यार इनको तो हमारे मामलात का मसले का पता ही नहीं है, खुद तो ये इस तरह से कहते हैं हम फ्लाइंग करके अभी पहुंचे हैं, हमने अभी 2 घंटे भी नहीं सोया, और हमें कह रहे हैं कि आज शाम को 6 बजे फिर आ जाओ। बिकॉज वो दूसरी फॉर्मेशन है, आर्मी वाले हैं, कोई और है, उनको हमारी मुश्किलात का नहीं पता होता, तब फ्रस्ट्रेशन होती है थोड़ी सी। अदरवाइज इट्स एंजॉयमेंट, इट्स वंडरफुल, बहुत मजे का काम है।
अगर आप यूज हो जाए तो मजे का जवाब है बिल्कुल। अच्छा किरो साहब, सिंस यू मेंशन दैट यू विल बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल रिमोट एरिया इन सकरन तालका, आप ये समझाएं कि हमारे पास जो सिंध के नौजवान है वो इस तरफ क्यों नहीं आते? इसका कहाँ पे सबब है आपके ख्याल में? क्यों आप तो दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, तो आप इनसाइडर भी हैं और आप सुसाइड का हिस्सा भी हैं। हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं पहुंची और लोगों बच्चों में ये ट्रेंड क्यों नहीं पैदा हो रहा है कि जिस तरह से हम हाथ धो के सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, व्हाई नॉट वी आर ऑप्टिंग फॉर आर्म ज्वाइनिंग आर्म फोर्सेस? आपने किस तरह देखा है इस चीज़ को? अच्छा, मैं क्योंकि रिक्रूटमेंट में और ट्रेनिंग सेटअप्स में भी रहा हूँ, मैंने देखा है। मेरे पास बहुत सारी सिफारिशें भी आती हैं कि जी हमारा बच्चा गया है, वो अब नई नौकरी कर पा रहा, तो उसकी जान छुड़ाएं, ये करें, इस तरह की आते हैं। होता क्यों है? इट इज कल्चरल प्रॉब्लम। हमारे जो लोग सिंध बलूचिस्तान के लोग और जो आज़ाद कश्मीर या जीबी के लोग जो नहीं जाते ना, देयर इज समथिंग विद द कल्चर। हमारे जो कल्चर है ना, हमारा गांव गोठ का या इवन हमारे शहरों का, उस कल्चर में ये चीज़ है नहीं कि इस तरफ अपॉर्चुनिटीज हैं और आपने ये करना। अगर आप मुझसे इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लें कि भाई इसमें पंजाब के केपीके के लोग ज्यादा क्यों हैं, क्या ये सिफारिश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, चीटिंग करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, ये चीज नहीं है। होता ये है कि उनकी वो ओरिएंटेशन है, हमारी वो ओरिएंटेशन नहीं है। अच्छा, जब वो ओरिएंटेशन नहीं है तो हमें वो पता भी नहीं होता। लास्ट टाइम पे हमें पता चलता है, हमें सिर्फ फिर एंड पे नजर आता है कि यार हमारे इसमें तो फौज में तो हमारे अफसर हैं ही नहीं, बड़ी जाती है हमारे साथ। वो इसलिए कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं रिक्रूटमेंट में था, मैंने बड़ा जोर लगाया, बहुत एफर्ट की, जा जाके दूर दूर से बलोचों को भर्ती किया। अराउंड 38 और मे बी 40 प्लस कुछ मैंने बलोच अफसर भर्ती किए, जो कि बहुत बड़ा कारनामा था एयरफोर्स में, कम हुआ है। तो मैं हैदराबाद में जब आया तो मैं नहीं कर पाया। अब उसकी वजह है कि मेरे बारे में तो किसी को शक नहीं है, मेरे में तो कोई बायस नहीं है, मैं तो कोई एंटी सिंधी या एंटी बलोच नहीं हूँ, मैं तो जोर लगाता था। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आएगा तो सिलेक्ट करेंगे ना। कोई बंदा आके उसको दरवाजे को नॉक करेगा तो दरवाजा खोलेगा ना। तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में और हमारे गांव में ये बताया नहीं जाता कि भी यहाँ यहाँ ये अपॉर्चुनिटीज है। देखिए हमारे उससे सीएसएस में लोग जाते हैं ना, आसान तो नहीं है। हमारे यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, यूरोप इटली जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, बिकॉज वो उनकी यूनिवर्सिटी उनको बताती है कि भी ये अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ स्कॉलरशिप मिलती है, चले जाओ। ये इससे अच्छा फुली फंडेड और इतना आसान और कोई ट्रैक करियर का हो ही नहीं सकता। और हमारी सीटें तो बहुत सारी खाली जाती हैं। तो सही है भाई। मैं थोड़ी देर के लिए हाउस ओपन करता हूँ। वासवानी साहब, आपका एक क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन कर लें, फिर हम आगे डिस्कशन को चलाते हैं। अच्छा, छोटे छोटे 3-4 क्वेश्चंस हैं, मे बी जो न्यू नोवाइस है, न्यू एंट्री या जो इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए मे बी बेनिफिशियल हो। एक तो, इज देयर एनी एनी डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंशियल कोटा? नंबर टू, इसकी एज लिमिटेशन एक तो आपने बताई कि फ्रॉम क्लास 4, 5 और 6 भी वो ज्वाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के बाद जहाँ पे वो करियर में कंपैरेटिवली बेटर चॉइसेस के बारे में सोच रहा होता है, उस स्टेज के ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे वो ज्वाइन कर सकता है। नंबर तीसरी चीज, रेम्यूनेशंस के बारे में, जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं जो ऑन जॉब और ड्यूरिंग जॉब के दौरान एंड पोस्ट रिटायरमेंट, उसका बेनिफिट्स वगैरह वो क्या हैं। चौथी चीज, रीच आउट और ओरिएंटेशंस के ऑप्शंस क्या होते हैं? इट इज रैंडम, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, दे गो टू द कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कम्युनिटीज। ये 4-5 क्वेश्चन थे, अगर आप इसके ऊपर ऊपर रोशनी डालें। जी थैंक यू वसवानी साहब। पहली बात तो ये है कि कोई इस तरह से स्पेसिफिक कोटा तो नहीं होता। एफर्ट जरूर होती है, जैसे मैंने बलूचिस्तान में कोशिश की थी, वो तो मैंने स्पेशल बलूचिस्तान के लिए कैंपेन रन की थी, बलूचिस्तान के लिए सिलेक्शन करना है। तो अलबत्ता ये कंसिडरेशन जरूर होती है कि डिफरेंट एरिया से लोग लेने हैं। अच्छा, दूसरी आपने बात की कि सिर्फ स्कूल के बच्चों को नहीं, मैंने बोला कि छठी सातवीं क्लास से लेके जा सकते हैं एज ए कैडेट, उसके बाद आगे उनका सिलेक्शन होगा आर्मी या एयरफोर्स नेवी में, एज पर उनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये एक ऑप्शन मैंने बताई थी। जो रेगुलर आर्मी एयरफोर्स नेवी की सिलेक्शन है वो तो या तो मैट्रिक बेसिस पे होती है या फिर इंटर बेसिस पे होती है, जिसको मैंने फर्स्ट ईयर बोला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्वालिफाइड उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो रेगुलर तो उसी पे होती है, मैट्रिक के बाद जो लोअर रैंक्स पे, जो टेक्निकल वगैरह, और जो इंटर के बाद जाते हैं वो, या इंटर करके जाते हैं वो, उसमें जाते हैं रेगुलर कमीशन ऑफिसर में। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद भी शॉर्ट कमीशन होता है, सारी फोर्सेस में होता है।
तो उस पर भी जा सकते हैं। उसके बाद आगे इवन जो स्पेशलिस्ट होते हैं जिन्होंने एमफिल पीएचडी वगैरह किया था, उनके भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। वो डिफरेंट हमारे थिंक टैंक्स में या कहीं कोऑप्टेड मेंबर्स इस तरह की चीज़ों में आते हैं। बट होता क्या है कि लोग ये समझते हैं, जो कि जनरल कॉन्सेप्ट है, कि जो कैंट का जो गेट है ना वो बंद है, कोई फौजी होगा तो मैं उसके थ्रू अंदर जाऊंगा, वरना वो बंद है। तो मैं आज ये आपको कह रहा हूँ कि नहीं, वो गेट को खड़काएं, आपकी एंट्री हो सकती है वेरी गुड। हर हर आदमी के लिए। नॉट ओनली जॉब्स, अगेन मैं कह रहा हूँ, नॉट ओनली जॉब्स, जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एफिलिएशंस, बहुत सारी चीजें, इट्स कंप्लीट इकोसिस्टम। थैंक यू कीरो साहब। सबसे पहले तो आपने जिस तरह से सारे स्टेप्स हम पे गाइड किया, गाइडेंस थी, वंडरफुल सेशन। आई रियली एंजॉयड एंड होप व्हेन आई विल अपलोड दिस सेशन ऑन सोशल मीडिया many people will seek direct guidance from you, and so it's a really wonderful session. और मैं इंशाल्लाह हमें इस पे हम मज़ीद भी इंशाल्लाह आपके साथ सेशन करते रहेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत वर्सटाइल है, as you conveyed to me. It's not only army, armed forces, other thing, but you have done tremendous work in field as well. You are also keeping your hand on pulse of society, so we'll also do sessions with you on different aspect of society. तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह हम आपके साथ और भी सेशंस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।